Good morning, everyone. Today we are having Mr. Ujjwal Nanayan, who is the Assistant Director of National Productivity Council, Ms. Preeti Gangwar, who is the Assistant Director of National Productivity Council, and Mr. Amit Vire, who is the Director of Region Director of National Productivity Council, who will be presenting before you all about the orientation of industrial safety. As in the video, we have already seen a things about the few things about the industrial safety. Now we would be moving ahead with the lecture to know more about the industrial safety. Thank you. Thank you, ma'am. उज्जवल सर स्टार्ट करिए। उज्जवल सर आपको वॉइस आ रही है? यस सर, योर वॉइस इज सर। कमिंग अच्छा सर। सर। सर पहले हमारे रीजनल डायरेक्टर सर बोलेंगे। जी सर सर को प्लीज गिव द राइट्स टू अमिताभ रे सर। अच्छा सर, किस नाम से कनेक्टेड है सर? अमिताभ रे। एक सेकंड सर। एचपी आ रहा होगा सर। एचपी नाम से सर कनेक्ट है सर। अच्छा ठीक है सर, हमने आपको अनम्यूट कर दिया है। अमिताभ सर। हाँ आ रही है। यस सर। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम सर इन विजन ग्रुप। Okay, good morning and welcome to all. I am Amitabh Rai, Regional Director of NPC Kanpur office. I welcome Mohammad Riyan, Dean of Academic, VIT Vision Institute of Technology, Kanpur, for your initiative to educate our new generation students and aspiring students of your institute to take up this online training course on industrial safety. A warm welcome and good morning to all students of Vision Group of Institutions, faculties, and to today's orientation webinar. First of all, I would like to just brief about NPC. NPC, as you know, it is an autonomous organization under Commerce and Industry and Government of India. Our headquarters is situated at Delhi. We have 13 regional offices all over India, in all major states, and a training institute. It is called as AIP Chennai. In fact, NPC was established in 1958, and our work is to promote productivity culture in the country. We offer consultancy services and training to all sectors of Indian economy and society. Online, this online e-learning program on industrial safety. This is, I know you may be knowing that it is a course for 1 month duration, and for the course we have very experienced faculties with experience in industry, in the field. In fact, they have lot of experience of field with whom your students can interact during these online classes, and they can clear their doubts also. This training course, in fact, will help them, and there will be a change in outlook after this course is over, and this awareness will be helpful for their during their job also, when they go to the industry and face the practical situations. In fact, when we were also doing engineering, we were not having this knowledge what happens in industry, but only after we started doing job in NPC, we went to several industries and found that how much safety is in fact required. This awareness is required. In fact, many industry, when we go, first of all, they will equip us with all the safety devices, and then only
they will allow us to enter the plant. So during this course, your students will be knowing all these things, what safety requirements are required in an industry, and different type of safety measures are there, as the, the, uh, that you were showing during this at the start of this event, that movie, small movie. And before we start this event, just I will define what is this industrial safety. Industrial safety hota kya hai? In fact, industrial safety, when you talk about, it is just minimizing, because you cannot avoid totally the hazards in the industry, but it is minimizing. We try to achieve the zero hazard, zero accident. So this industrial safety, you can define it as a minimizing the hazards, accidents, or near miss. Near miss means, in Hindi we call it jara se ke liye chuk gaya, means jara se bach gaya. That is also covered, that will be also covered. And in industry we have seen also, because when we also go to the industry, we put a helmet, and say suppose we are moving through the plant, you are in a hurry, you want to take some measurement, or some you are working with some person, and by chance you could not see that there is a bar above your head, and you just get stuck with that. These are called as near miss. Say suppose if I had not put that helmet, my head could have got injured. So in industry, when you move, when you work, you have to take the safety measures. In fact, we are doing consultancy, and we have to move to such places where there are a lot of risk. But with precaution only, with these safety measures, we are able to work there without any accident. So your students, I think, when we put up this type of case studies, and when we discuss this type of cases which we have faced in industry during our, because I have spent almost more than 22 years in NPC, and I have visited more than 150 to 200 industry during my last 22 years career, and I have found accidents also, where people somehow got stuck in this type of situation, and some mishappening occurred during our studies also. And this type of case studies will be discussed, and I think this course will be very, very helpful to your students when they go to industry. It is not only that when they go to industry, but safety needs is a requirement of day-to-day life also. Even in a house, when we work, we take all safety measures while doing any type of work. So say whether it is in a kitchen, or in your drawing room, or suppose if you are putting a bulb or a light at your house, then also you have to take a safety measure before putting that doing that work. So with all this, I will not take much time, and I will request my colleague Ujjwal Narayan to please take up the next course. Okay. Thank you, sir. So bye. Thank you, Regional Director, sir, and Mohammad Rehan, sir. Sir, please give me the rights for the screen share. सर ओके सर. सर आप वीडियो ऑन कर लीजिए. Okay, okay. एक मिनट सर, बस आप स्टार्ट करिए, हम राइट देते हैं. ठीक है. मैं मोहम्मद रेहान सर का थैंक यू करूंगा, जिन्होंने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे मतलब बच्चों के सामने बोलने का मतलब मौका दिया. मैं तो फर्स्ट टाइम मतलब बच्चों के सामने इतना मतलब इतने बड़े ऑडियंस के सामने बोल रहा हूँ. और सेफ्टी के बारे में बोलना है तो सबसे पहले जो आज की जो सिचुएशन चल रही है, जो कोरोना वायरस आ रहा है, इसमें क्या प्रिकॉशन लेना है हमें. सर मेरी वॉइस क्लियर है अभी? हाँ सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है. तो मैं सबसे पहले तो कोरोना वायरस के सेफ्टी के बारे में बताना चाहूँगा, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए हमें. इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में तो मैं बाद में आता हूँ. पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं पहले कोरोना वायरस की सेफ्टी के बारे में बताऊँ.
कि क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। फर्स्ट प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए कि गवर्नमेंट हमें ये कह रही है बार बार कि हमें बार बार हाथ धोना चाहिए, चाहे वो हैंड वॉश से धोएं या फिर हैंड रब करें सैनिटाइजर से। क्यों करें? क्योंकि अगर हम बार बार हैंड वॉश करेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारे हाथ में वायरस लगे, अगर मान लीजिए उसके बाद हम अपने मुंह पे हाथ ले जाते हैं, तो वायरस का एक इंजेक्ट का सोर्स क्या है, हमारा माउथ है और नोज है। तो माउथ और नोज के थ्रू, हमारे हैंड के थ्रू ही जाएगा वायरस। तो इसके कारण, इसके लिए गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो हैंड वॉश करें या हैंड सैनिटाइज करते रहें प्रॉपर। और अब जो आजकल ये सेकंड जो है, जो पहले गवर्नमेंट ने कहा था N95 जो मास्क यूज करना है हमें, तो लेकिन अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है कि जो वॉल जो अभी जो मास्क अभी वॉल वाला जो यूज कर रहे हैं वो नहीं यूज करना है। क्यों यूज नहीं करना है? क्योंकि जो वो वॉल्व है, वो जो हम इनटेक करते हैं वो तो हम फ्रेश एयर लेते हैं। मान लीजिए मैं कोरोना वायरस पेशेंट हूँ और मैं इनटेक फ्रेश एयर कर रहा हूँ, जो मैं छोड़ूंगा तो वो जो एयर है, वो जो वॉल के साथ जो एग्जॉस्ट होगी, वो जो एयर, वो कोरोना वायरस के साथ इंजेक्ट बाहर हो जाएगी, मतलब मास्क के बाहर एयर जाएगी। तो इसके लिए सरकार कह रही है वो कंप्लीट मास्क यूज करें, वॉल वाला मास्क यूज ना करें। इनलेट इनलेट तो हो रहा है कोरोना वायरस, लेकिन सॉरी, इनलेट तो एक्चुअली हम फ्रेश एयर कर रहे हैं, लेकिन आउटलेट जो है कोरोना वायरस के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वो वॉल लगा है, वो थोड़ा गलत लगा है। तो इसलिए हम वो मास्क है पूरा कंप्लीटली यूज करें। और 2 गज की चीज, गज की जो दूरी कह रहे हैं वो 3 फीट की दूरी होनी चाहिए, तो ये गवर्नमेंट कह रही है। ठीक है। और एक एक सूचना और मैं देना चाहूंगा, एक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए सरकार कह रही है। उसका कारण ये है कि अगर मान लीजिए कोई कोरोना, आप लोग हैं, मान लीजिए किसी के कोरोना वायरस के पेशेंट के आसपास आते हैं, तो अगर आपका ब्लूटूथ और वो लोकेशन का सर्विस ऑन है अगर आपके फ़ोन का, तो वो तुरंत डिटेक्ट करके बताता है कि आप इस बंदे के कांटेक्ट में आए हैं जिनको कोरोना वायरस है, और आप कुछ 14 डेज या जो भी वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अनुसार आप क्वारंटाइन हो जाइए। ठीक है, ये तो कोरोना वायरस का था। और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में ये बताना चाहूंगा कि ये जो पीपीटी शेयर कर कोर्स जो सकते हैं सर आप। डिजाइन, ओके, जस्ट मिनट सर। द स्क्रीन इज कमिंग। हाँ सर, इसको जूम कर दीजिए बस। दिस इज ओके। सर फुल स्क्रीन में नहीं है अभी, बस किधर होता है? नाउ इट्स ओके। हाँ अब सर ठीक है। तो सर, जो ये कोर्स जो डिज़ाइन किया गया है, एक्चुअली मेनली पहले जो मैंने डिज़ाइन किया था, मेनली जो इंडस्ट्रीज के पीपल के लिए डिज़ाइन किया था ये जो कोर्स है। लेकिन फिर मैंने सोचा, जब मैं बीटेक कर रहा, जब मेरा बीटेक परस्यू मैं कर रहा था, तब मेरे को खाली जो, मैंने बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है, तो खाली मेरे को थियोरेटिकल नॉलेज था। जैसे कि आप यूनिट ऑपरेशन पढ़ते होंगे शायद, डिस्टिलेशन कॉलम, जो मैकेनिकल और केमिकल के लोग होंगे, यूनिट ऑपरेशन में डिस्टिलेशन कॉलम आता है, हीट एक्सचेंजर, एवोपरेटर्स, ये सब आते हैं। तो इनका हमें थियोरेटिकल नॉलेज था खाली। जब मैं इंडस्ट्री में गया, उसके बाद मैंने देखा कि जब मैं काम करने लगा, उसके बाद देखा कि लोग, मेरे को प्रोडक्शन का नॉलेज तो हो रहा था, लेकिन सेफ्टी का नॉलेज नहीं हो रहा था। उसके बाद में जब इंटरव्यू देने गया, तो तो लोगों ने मेरे को सेफ्टी के बारे में पूछा कि ये कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, परमिट्स क्या होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से अभी जो हम लोग
बीटेक और ये सब करते हैं, जब जो भी हमारी जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें ये सब पढ़ाया नहीं जाता है हमें पर में, तो इसलिए मैंने उस कोर्स को टेक्निकल एजुकेशन में भी मतलब बच्चों के लिए भी ओपन कर दिया। इंडस्ट्री के लिए तो ओपन है ही, अब मैंने बच्चों के लिए भी ओपन किया, और मेनली टेक्निकल इसमें जो इन्वॉल्व है डिप्लोमा, बीटेक और बी। ठीक है, तो अब मैं कोर्स की तरफ जाता हूँ। कोर्स का कंटेंट क्या है? सबसे पहले तो फायर एंड सेफ्टी है, फिर सेकंड है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी और प्रेशर वेसल और कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी। तो मेरे ख्याल से अभी तक जो 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 बच्चे हैं वो जानते होंगे फायर एंड सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के बारे में जानते होंगे, लेकिन प्रेशर वेसल सेफ्टी और कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी क्या होता है मेरे ख्याल से कोई भी नहीं, मतलब शायद टीचर्स लोग तो जानते होंगे लेकिन बच्चे कोई भी नहीं जानते होंगे क्या चीज़ है। तो इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा क्या चीज़ है। ठीक है, फायर एंड सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, प्रेशर वेसल सेफ्टी, कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी होता क्या है पहले तो मैं ये बताऊंगा। इंडस्ट्रियल सेफ्टी जैसे मान लीजिए हम कोई भी इंडस्ट्री में अभी काम कर रहा हूँ, मैं ही हूँ मान लीजिए काम कर रहा हूँ, और मेरा कोई एक अनसेफ एक्ट मैं करता हूँ। मान लीजिए मैं अभी किसी मशीन पे काम कर रहा हूँ और मैंने एक चाय रख दी, उस पर पी रहा था, मैंने प्लेटफॉर्म पे चाय रख दी। ठीक है, चाय रखने के बाद चाय रखने के बाद मान लीजिए वो चाय गिर गई मशीन के ऊपर और मशीन से नीचे आ गई, और हो सकता है कि मैं उससे फिसल के गिर जाऊं। तो इसमें दो एक्ट हुए, एक दो चीजें आई, एक अनसेफ एक्ट हुआ, एक अनसेफ कंडीशन क्रिएट की गई। अनसेफ कंडीशन किसको कहेंगे? अनसेफ कंडीशन ये हुई, एक्ट क्या हुआ कि जो मैंने चाय जो उस पर रख दी इसको कहेंगे अनसेफ एक्ट, और जो कंडीशन क्रिएट हुई, जो चाय जो गिर गई और उसके बाद वो फ्लोर पे फैल गई, उसके बाद क्या हुआ, मैं फिसल के गिर गया, और हो सकता है मेरा सर फट जाए मशीन पे लग के, हो सकता है वहां पे ब्लेड चल रहा हो, तो हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, बड़ी इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी तो ये हो गया। और एक्सीडेंट क्या होता है? तो ये तो एक्सीडेंट क्या होता है, अनप्लान्ड होता है। जैसे अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो तो अनप्लान्ड एक्सीडेंट अनप्लान्ड था, अनफोर्स सीजन था, लेकिन अगर मैं चाय वहां पे नहीं रखता तो शायद वो एक्सीडेंट नहीं होता। तो हमें कोई भी अगर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होता है और कोई नॉर्मल एक्सीडेंट होता है तो उसके रूट कॉज में जाना चाहिए कि कैसे वो एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट ये वाला जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्योंकि मैं वहां पे चाय पी रहा था और मैंने उसको प्लेटफॉर्म पे रख दिया। अगर वही मैं चाय जाके कैंटीन में जाके चाय पी रहा होता तो शायद वो मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था वो नहीं होता, अगर मैं कैंटीन में जाके पी रहा होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर वर्क प्लेस पे अगर कोई इंडस्ट्री है वहां पे एक कैंटीन होना बहुत जरूरी, या फिर एक कोई जगह बनानी चाहिए जहाँ पे चाय वर्कर्स जो हैं और स्टाफ के जो लोग हैं वहाँ पे चाय पी जाए। लेकिन कुछ इंडस्ट्री जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज होती हैं, जो छोटे लोग मतलब जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हैं। जो बड़ी इंडस्ट्री हैं वो तो ध्यान देती हैं। तो एक्सीडेंट इस तरीके का हो गया। अब मैंने अभी बताया था कॉजेस, अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट बताया था अभी, जो चाय का मैंने एग्जाम्पल लिया आपको। तो यही कॉजेज होते हैं, अनसेफ एक्ट और कंडीशन। और कुछ होता है जैसे मैंने इस फिगर में दिखाया हुआ है, मशीन हैज नो ब्रेन। मशीन के पास तो कोई ब्रेन नहीं होता, जिस तरीके से हम चलाएंगे उसी तरीके से मशीन चलेगी। अगर मैं किसी मशीन को अगर सही से मान लीजिए मैंने उसका मेंटेनेंस नहीं करवा रहा हूँ, मान लीजिए आप लोग को शायद नहीं पता होगा, एक पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है। जैसे हम अपने घर में, जैसे कार का आपने सुना होगा सर्विसिंग होती है हर साल में, पर ईयर कार में सर्विसिंग हो रही है, तो ऐसे हर पर मंथ हर मशीन या उसका पीरियोडिक मेंटेनेंस का पीरियड तय रहता है कि इस इतने दिनों बाद ये मेंटेनेंस कराना है। तो लेकिन अगर मान लीजिए मैंने मेंटेनेंस नहीं कराया तो ये एक अनसेफ कंडीशन में क्रिएट कर रहा हूँ, और या फिर न्योता दे रहा हूँ कि वो जो मशीन है हो सकता है वो
कुछ 1-1.5 महीने बाद कुछ ऐसा हो, वाइब्रेशंस होने लग जाएंगे कुछ दिनों बाद उसमें, और हो सकता है वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अनसेफ एक्ट के बारे में बता चुका हूँ। अनसेफ एक्ट में क्या क्या आएगा? ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी, ठीक है, ऑपरेटिंग एंड अनसेफ स्पीड। अनसेफ स्पीड क्या है? अनसेफ मोटरसाइकिल से मान लीजिए मैं जा रहा हूँ, मैं एकदम बहुत तेजी से चला रहा हूँ, तो वो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी क्या है कि कोई भी काम करने के लिए अथॉरिटी देनी होती है। जैसे मान लीजिए मैं अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ, तो जब तक कोई जो घर का मालिक होगा, जब तक वो अथॉरिटी नहीं देगा, तब तक वो लेबर वहां पे जाके काम नहीं कर सकता है। ठीक है, ये अथॉरिटी हो गया। तो इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि एक परमिट पेपर चलता है, हर चीज का परमिट बनाया जाता है। अगर इंडस्ट्री कुछ काम होना है तो परमिट बनाया जाएगा, तो उस पे जो साइन होते हैं, जो भी उस समय शिफ्ट का जो इंचार्ज होता है उसके साइन होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो मान लीजिए मैनेजर है, उसके साइन होते हैं, सबके साइन होते हैं, तभी वो वहां पे जाके काम करेगा। तो ये अथॉरिटी हो गई कि काम करने की। ठीक है, और यूजिंग पीपी। पीपी तो सबको पता है कि क्या क्या होता है। आपने ईयर प्लग लगा लिया, अभी सर ने वीडियो जो दिखाया था उसमें क्या था कि बता रहे थे कि ईयर प्लग लगा होना चाहिए अगर आप किसी साउंड वाली जगह पे जा रहे हैं। शूज, सेफ्टी शूज पहने होने चाहिए। तो ये सब पीपी में आ जाता है। और केयरलेस थ्रोइंग ऑफ मटेरियल एट वर्क प्लेस, जो अभी मैंने चाय का एग्जांपल दिया, वो इससे एकदम फिट बैठता है। यूजिंग डिफेक्टिव टूल्स। टूल्स क्या होते हैं? डिफेक्टिव टूल्स, मान लीजिए कोई प्लायर है, मैंने लिया हुआ है, ठीक है। प्लेयर तो सभी लोग जानते होंगे क्या होता है। प्लेयर, अगर मान लीजिए वो जो उस पे एक रेड या ग्रीन कलर का वो जो इंसुलेशन चढ़ा होता है, अगर मान लीजिए वो इंसुलेशन नहीं चढ़ा है, वो डिफेक्टिव है, और मैं उसको यूज कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरे को करंट लग जाए। ठीक है, और एक एसओपी होती है, जिस एसओपी कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हर हर काम को करने का एक इंडस्ट्री में प्रोसीजर बना होता है। जैसे मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं, तो उसका एक प्रोसीजर है कि पहले हमें नमक डालना है, पहले पानी डालना है, फिर जो भी डालना है, जो चाय का प्रोसीजर है वो है। तो ऐसे ही हर काम को करने का एक प्रोसीजर बना होता है, उसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सर फायर एंड सेफ्टी पे। तो फायर कैसे लगती है, मतलब फायर लगने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरत होती है? तो सबसे पहले तो सोर्स चाहिए, जो मतलब फ्यूल जो होता है। फ्यूल तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए वुड है, पेट्रोल है, डीजल है, कुछ भी हो सकता है। वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, और हमें ऑक्सीजन चाहिए, मतलब एयर चाहिए। एयर में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज रहता है 20.8% है। ठीक है, और फायर के लिए, फायर होने के लिए अबाउट 17% ऑफ ऑक्सीजन हमें चाहिए रहता है। और उस फायर को लगने के लिए हमें हीट चाहिए। अगर मान लीजिए अगर हीट ही नहीं है, जैसे हम माचिस जब तक नहीं लगाएंगे तब तक फायर नहीं पकड़ेगा। ठीक है, तो ये फायर के लिए तीन चीजें एसेंशियल हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। ठीक है, तो फ्यूल कितने तरीके के हो सकते हैं? गैसेस हैं, लिक्विड हैं, सॉलिड है। तो गैसेस में नेचुरल गैस आ जाता है। जैसे मान लीजिए अभी आजकल जो हम लोग जो टैक्सीज में आजकल जो डल रहा है, सीएनजी गैस डल रहा है, तो वो भी एक फ्यूल है। ठीक है, फिर ब्यूटेन है। आजकल जो पावर प्लांट, सबको पता होगा मेरे ख्याल से, पावर प्लांट जहाँ से हम लोग का लाइट आता है, पहले जो बॉयलर जो जो बिजली का उत्पादन होता था, शायद पहले कोयले से होता था। आजकल जो हम लोगों ने कन्वर्जन जो कर दिया है, गैस पे आ गए, सी एलपीजी गैस और सीएनजी गैस पे चल रहा है। और लिक्विड जो फ्यूल रहता है, गैसोलीन, लिक्विड गैस तो सभी लोग जानते हैं। लिक्विड का जो फ्यूल रहता है, पेट्रोल, अल्कोहल, पेंट्स, वार्निश, ये सब लोग जानते हैं। सॉलिड में कोल, वुड, पेपर, क्लॉथ, वैक्स, ग्रीस, लेदर, प्लास्टिक, ये सब आते हैं। नेक्स्ट, अब कितने तरीके की फायर होती हैं? टोटल 5 तरीके की फायर हैं। क्लास ए फायर क्या होती है? जो क्लास ए फायर हैं, मान लीजिए कोई वुड पे फायर लगा हुआ है या कोई सॉलिड चीज पे फायर लगा हुआ है, तो उसको क्लास ए फायर कहते हैं। जो हम लोग ठंडियों में जो आग जैसे जलाते हैं, तो उसको क्लास ए फायर में लेंगे। फिर क्लास बी फायर क्या होता है? फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। मान लीजिए उनका फ्लैश पॉइंट होता है कम, बहुत कम होता है। अगर थोड़ा सा भी उनको मिलेगा कि थोड़ी सी भी चिंगारी भी मिल जाएगी, तो वो तुरंत पेट्रोल तुरंत आग पकड़ लेगा।
ठीक है। तो ये लिक्विड फ्यूल जो हो गया क्लास बी फायर हो गया। क्लास सी फायर क्या होता है, जो गैसेस होते हैं जैसे मैंने बताया सीएनजी, मीथेन, ब्यूटेन, ये सब आपका क्लास सी फायर में आ गया। क्लास डी फायर क्या है, मेटल्स पे जो फायर लगता है उनको कहते हैं एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम में जो फायर लगेगा उनको कहेंगे क्लास डी फायर। क्लास एफ फायर क्या होता है, जो हम लोग कुकिंग करते हैं, कुकिंग ऑयल एंड फैट को क्लास एफ फायर में आएगा, जैसे सरसों का तेल हो गया इनको, और जो धारा जो हम लोग यूज करते हैं उनको कहते हैं, या फिर घी हो गया, क्लास एफ फायर में आएंगे। सर समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ क्लियर। ओके। और ये जो पिक्चर्स जो दिखाई गई हैं, देखिए जो क्लास ए फायर की जो पिक्चर है वो देखिए वुड पे लगी हुई है कैसे, ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लास ए फायर। ये क्लास बी का जो ऑयल और ये ग्रीस जो लिक्विड वाला था वो एग्जांपल देखिए कैसा है। फिर क्लास डी फायर और डी फायर का एग्जांपल है। फिर फिर आ जाते हैं सर कंस्ट्रक्शन सेफ्टी पे। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी क्या होता है, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी जो है, मान लीजिए आप अपने घर में कोई हाइट पे काम करवा रहे हैं, तो जो लेबर है उसने सही से, एक तो सबसे पहली बात जो घर पे काम होते हैं जो हाइट पे हो रहे हैं, मान लीजिए सेकंड फ्लोर पे काम हो रहा है, तो मे भी हो सकता है कि वो सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनता है। हम लोग घर पे ऐसे काम करवाते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे काम करवाना नहीं चाहिए। कहीं बाई चांस वो स्लिप हो गया तो उसको इंजरी हो सकती, इवन डेथ भी हो सकती है उसकी। फिर उसके बाद बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो सेफ्टी बेल्ट है अगर कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है। अगर अब ये मैं इंडस्ट्री की तरफ ले जाता हूँ तो क्या होता है कि अगर मैं, एक कम होता है वर्क एट हाइट, अगर वर्क एट हाइट हो रहा है, कुछ भी काम हो रहा है, अगर पाइपलाइंस गई है, इंडस्ट्रीज में क्या होता है ऊपर ही ऊपर पाइपलाइंस जाती है और ऊपर जाके हमें काम करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कभी कभी कि जो पाइपलाइंस है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे रहती हैं, उनके जो लिक्विड जो फ्लो करता है वो अबाउट 250 डिग्री पे भी हो सकता है और इवन 1000 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात वो लिक्विड उस पाइपलाइन पे खाली हुआ कि नहीं हुआ है वो हमें जानकारी लेनी चाहिए। फिर उसमें प्रॉपर फ्लशिंग की गई है कि नहीं नाइट्रोजन की, हो सकता है उसके अंदर ज्वलनशील पदार्थ हो और हम नाइट्रोजन की फ्लशिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है उसके अंदर ऑक्सीजन हो और कुछ वो पदार्थ रह जाए, तो बाद में हो सकता है हम वेल्डिंग या कटिंग करने जाएं तो हो सकता है उस पर आग पकड़ ले। तो जैसे ही हम कंस्ट्रक्ट वर्क एट हाइट पे गए तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी। और सबसे बड़ी बात सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग बहुत जरूरी है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में। और कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में फिर आपका फोक लिफ्ट में भी आ जाता है। फोक लिफ्ट जो पाथ जो बनाया हुआ था, फोक लिफ्ट मेरे ख्याल पे जानते नहीं होंगे लोग, जो क्रेन होता है, क्रेन और फोक लिफ्ट बहुत छोटी सी गाड़ी होती है फोक लिफ्ट, जो थोड़ा सा सामान उठा के इधर उधर घूमती रहती है। तो उसका पाथ अगर डिसाइडेड नहीं होगा तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। ये देखिए ये जो एग्जांपल दिया हुआ है हम लोग का स्टेयर्स पे चढ़ने का दिया हुआ है। अगर मान लीजिए हम सही से नहीं चढ़ रहे हैं स्टेयर्स पे तो कभी भी हम स्लिप होके गिर सकते हैं। या फिर जो अभी अभी हमारे कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल, अभी कुछ 1 ईयर पहले हमारे मोदी साहब आए हुए थे शायद गंगा बैराज पे। आप लोगों ने सुना होगा मोदी साहब थोड़ा सा अ, अ, डगमगा गए थे उनके पग। तो जो उनकी सीढ़ियों की जो वो थी क्या कहते हैं उनकी वृत्त थी वो अनइवन बनाई हुई थी, तो इसके कारण वो थोड़ा सा डगमगा गए। तो ये कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का एक एग्जांपल हो, अगर वो जो वृत्त है अगर वो सही रहेगी हमेशा तो कोई चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और कोई मतलब अनसेफ कंडीशन या एक्ट क्रिएट हो, एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है। फिर प्रेशर वेसल क्या होता है? प्रेशर वेसल सर आप लोग ने देखा होगा कि बहुत सारी जो गाड़ियां जो रहती हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा पीछे एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी करके लिखा रहता है कि एक बहुत बड़ा सा पीछे सिलेंडर रहता है
और एलपीजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। तो वो जो पीछे जो सिलेंडर रहता है उसको बोलते हैं प्रेशर वेसल, ठीक है। मेनली ये जो टैंक्स है स्टोरेज के लिए यूज किए जाते हैं, और इधर से कहीं भी गैस ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है, जैसे पेट्रोल का हो गया, कुछ भी हो गया। स्टोरेज के लिए जो इवन जो दूध का जो मटेरियल जब जाता है उसको भी प्रेशर वेसल कहते हैं, जो दूध वाली गाड़ी रहती है उसको भी प्रेशर वेसल कहते हैं, ठीक है। लेकिन तरल पदार्थ तो रहता नहीं, तो उसमें हाई प्रेशर कभी क्रिएट नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसमें जाएंगे जैसे एलपीजी में होगा, एलपीजी का जो सिलेंडर रहता है, जो बड़ा वाला जो गाड़ी वाला सिलेंडर रहता है, उसमें जो क्या होता है टेम्परेचर के साथ प्रेशर ऑटोमेटिक चेंज होता है। ये आप लोग शायद केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे होंगे वो जानते होंगे। जो टेम्परेचर के साथ मेरे ख्याल से इन्वर्सली शायद प्रोपोर्शनल है, मेरे को याद नहीं है, मेरे को बीटेक का याद नहीं है। लेकिन क्या होता है टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ता ही है। तो क्या होता है वो सिलेंडर का प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो ब्लास्ट हो सकता है कुछ। उसमें क्या होता है कि एक प्रेशर रिलीफ वॉल्व लगा रहता है, जैसे हमने अपने घर में कुकर में देखा होगा एक सेफ्टी वॉल्व रहता है, उसको कहते हैं प्रेशर रिलीफ वॉल्व। जैसे ही जो कुकर में जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो उसको बोलते हैं, जब प्रेशर मतलब कुकर में जैसे ही बढ़ेगा तो वो से कभी कभी क्या होता है वो सेफ्टी वॉल्व फट जाता है। तो अगर सेफ्टी वॉल्व फटा तब तक तो ठीक है, अगर मान लीजिए वो आपने सेफ्टी वॉल्व अगर कहीं ब्लॉकेज है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो कुकर पूरा फट सकता है। तो यही सेम जो कुकर वाला एग्जांपल, यही सेम जो चीज है कंडीशन में इंडस्ट्रीज में भी फॉलो होती है। और ये जो आपका जो सिलेंडर, जो पीछे जो गाड़ियों में जो सिलेंडर्स लगे रहते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है, वही सेम चीज है। अगर इंडस्ट्री में कोई अगर प्रेशर वेसल है, मान लीजिए कोई टैंक है, उसमें अगर मान लीजिए कोई लिक्विड भरा हुआ है और वो हाई टेम्परेचर पे है और उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, कोई पंप चल रहा है उसके साथ सर्कुलेशन में और प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लिक्विड यानी कि मतलब लिक्विड आता जा रहा है, तो क्या होगा उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। और जो उसका मान लीजिए उसका वो जो प्रेशर रिलीफ वॉल्व है जिसको सेफ्टी वॉल्व कहते हैं, वो ब्लॉक है। अगर वो खुला नहीं, वो ब्लॉक है तो खुलेगा ही नहीं, तो क्या होगा उसका प्रेशर बढ़ जाएगा उस टैंक का। तो धीमे धीमे क्या होगा वो इतना प्रेशर बढ़ जाएगा कि वो टैंक फट जाएगा। टैंक फटने के बाद क्या होगा, जो भी उसमें लिक्विड जो हाई टेम्परेचर पे था वो फ्लोर पे आएगा, और फ्लोर पे आने के बाद पूरा, अगर वो मान लीजिए थर्ड फ्लोर पे वो टैंक था, वो पूरा नीचे आके दूसरे इक्विपमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम करेगा और इवन इंजरीज करेगा हम लोग, मतलब मेंस को भी, सब लोग को। तो ये प्रेशर वेसल हो गया, ठीक है। प्रेशर वेसल कितने तरीके के होते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रेशर वेसल जो गाड़ियों में आपने देखा होगा एकदम हॉरिजॉन्टल की तरह लगे रहते हैं, हॉरिजॉन्टल रहते हैं। वर्टिकल जो खड़े रहते हैं, और स्फेरिकल प्रेशर वेसल गोल रहेंगे। ये कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्फेरिकल के। अब कन्फाइंड स्पेस क्या हो गया? कन्फाइंड स्पेस बिल्कुल प्रेशर वेसल से रिलेटेड है। अगर मान लीजिए जो प्रेशर वेसल है उसमें कोई केमिकल भरा है और उसमें क्या है, हमें काम करने, कुछ मेंटेनेंस के काम करने के लिए अंदर जाना है, तो सबसे पहले उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो जो टैंक है अगर वो खाली खाली कर दिया गया तो वो ऑटोमेटिक जो उसके अंदर जो स्पेस क्रिएट होगा उसको बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस ही अंदर वाले को ही बोलेंगे, क्योंकि जो उसमें जो लिक्विड या पेट्रोलियम का जो पेट्रोकेमिकल्स रहते हैं अगर उसमें हैं और उनको खाली कर दिया गया, तो खाली करने के बाद जो भी स्पेस बचेगा उसको कन्फाइंड स्पेस कहते हैं, और पूरा खाली कर दिया जाता है उसको, क्योंकि मेंटेनेंस का हमें काम करना है, तो कन्फाइंड स्पेस इसको कहते हैं। कुछ एग्जांपल ये दिखाए गए हैं, ये कुछ एक H2SO4 का जो टैंक है इसको है, इसको अगर खोल के देखेंगे दिस इज कॉल्ड कन्फाइंड स्पेस। अगर आप कुछ मेंटेनेंस के करने के लिए अंदर हम जाते हैं अगर काम करने के लिए, तो इसके लिए भी सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत सारे हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं? कि वो टैंक खाली है कि नहीं, हमने परमिट अथॉरिटी ली है कि नहीं, प्रोसेस कुछ इंडस्ट्री में एक प्रोसेस डिपार्टमेंट होता है
उससे हमने अथॉरिटी ली है कि नहीं कि वो टैंक खाली हो गया है कि नहीं खाली हो गया है। सारे जो उसके ऊपर वॉल्व हैं, सारे वॉल्व आइसोलेट हैं कि नहीं, आइसोलेट का मतलब बंद है कि नहीं, जैसे हमारा जो घर की जो टोटी होती है वो बंद है कि नहीं, ये सब में आइसोलेशन देखने पड़ते हैं। अगर ये मान लीजिए एक भी वॉल्व अगर खुला हुआ है तो कभी भी अगर मान ली और हम अंदर हैं तो कभी भी क्या हो सकता है, वो लिक्विड अगर वॉल्व खुला है तो वो लिक्विड अंदर आ सकता है और हमें इंजरी कर सकता है। इवन अगर वो प्रोडक्ट जो लिक्विड है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है तो इवन हमारी डेथ हो सकती है। और आपने ये सुना भी होगा कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी मेरे ख्याल से 1984 में हुई थी, मिथाइल आइसो गैस साइनाइड के कारण हुई थी। जो लीकेज हुआ था कुछ रेफ उसको जो मिथेन मिथाइल आइसो साइनाइड जो गैस है उसको कुछ मेरे ख्याल से 10 या 20 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री या और बिलो 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखना पड़ता है स्टोरेज के लिए। तो कुछ 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेशन जो सेक्शन होता है जो मतलब जो कूलिंग क्रिएट करता है मतलब जो टैंक में जो होता है, तो वो सेक्शन 2 घंटे के लिए मेंटेनेंस में लिया गया था। तो क्या हुआ, उसका टेम्परेचर राइज हुआ और उसका टेम्परेचर राइज होने के बाद क्या हुआ, उसका प्रेशर बढ़ा और प्रेशर रिलीफ वाल्व मेरे ख्याल से शायद फट गया था या कुछ हुआ था, मेरे को क्लियरली नहीं पता है। लेकिन मीथेन मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस निकली इंस्टेड मेरे ख्याल से 2 वीक्स में अराउंड वहाँ पे 5000 भोपाल में 5000 लोग मर गए थे और 5 लाख इंजरीज हुई थी। तो कोई भी केमिकल है वो बहुत इंजरी हो सकता है उससे। और केमिकल हैजार्ड का एक्चुअली हमने टॉपिक कवर नहीं किया है, वो अलग से कभी अगर टाइम मिलेगा तो करेंगे, ठीक है। और अब मैं जो मतलब बोलने का जो ये है, मैं प्रीति गंगवार जी पे जरा दूंगा। सर मैडम किस ना इसी इसी में कनेक्ट है कि किसी दूसरे नाम से कनेक्ट है? 1 मिनट, प्रीति यहीं आके बोल दोगे? हाँ वहीं से बोलवा दी। हाँ प्रीति नाम से कनेक्ट है। अच्छा अच्छा, 1 मिनट रुकिए। ठीक है सर, हमने अनम्यूट कर दिया। मैम आप बोल और सकते सर हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मेरे को अभी सर क्वेश्चन तो दिख रहे लास्ट में कर लेंगे, मैम का प्रेजेंटेशन हो जाए। हैं। ओके ओके, सर पीपीटी आप शेयरिंग चाहे हटा दीजिए अब। जस्ट मिनट, मैं पीपीटी शेयर। ठीक। हाँ यस सर, मेरे को ही राइट्स दीजिए, मेरे पास ही पीपीटी मैं रन कर दूंगा। अच्छा आप ही को दे दें। हम्म। ठीक है सर, आप रन कर दीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैडम क्लियर है। ओके, उज्जवल शेयर कर देना। मीनवाइल मैं जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ हैं सभी का वेलकम कर रही हूँ इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, ट्रेनिंग का मतलब क्या है, आधी बातें तो यहीं पे आके स्टार्ट हो जाती हैं कि भाई हम आपको ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं। आपने ऑलरेडी ये सारी चीजें सीखी हुई हैं। स्टार्टिंग में मैंने देखा वीडियो चल रहा था, इट मीन्स कि आप लोगों के करिकुलम में ऑलरेडी ये सारी बातें आपको सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि आपको इस तरीके से इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे जॉब करने, क्योंकि आप एक टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, इसके बाद कुछ लोग अपनी इंडस्ट्री सेट करना चाहेंगे, कुछ किसी इंडस्ट्री में जॉब करना चाहेंगे। तो आपको जो है ये सीखना है, ये देखना है कि हम कैसे अपने बिहेवियरल चेंज लाएं, कि कैसे हम अपने प्रोफेशनल और पर्सनल एटीट्यूड को चेंज करें विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। अभी जो बात चल रही है एक ट्रेनिंग की बात चल रही है। तो सर एक तो मैं आपसे ये एक बात कहना चाह रही थी कि एट द स्टार्ट ऑफ रिहान सर। हाँ मैडम बोलिए। हाँ सर, एट द स्टार्ट मैंने देखा मोर देन 140 और 135 लगभग स्टूडेंट्स थे। Yes, सो ma'am. व्हाट इज द रीजन कि अभी लेस देन 100 हो गए हैं? ये मैम ऐसा मैंने भी ऑब्जर्व हाँ किया है। मैं देखता हूँ कौन है बच्चे। तो हाँ, मैंने दरअसल हो स्टार्टिंग सकता से है कुछ देखा। बच्चे इसमें
इंटरेस्ट नहीं लेना हाँ चाह हो रहे हैं। सकता है, हाँ ये पॉसिबिलिटी है। मेरा जो आ, सेशन है, देखिए आप लोगों ने बता दिया, अमिताभ सर ने काफी कुछ बताया, उज्जवल ने भी काफी कुछ बताया कि ये सब है क्या। मैं सिर्फ यही यहाँ बताऊंगी कि आप लोग ये कोर्स क्यों ज्वाइन करो। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने ये 98 जिसमें से कुछ टीचर्स भी होंगे, रिहान सर को मिला के मतलब 98 टोटल अभी पार्टिसिपेंट्स हैं। आप लोग अगर ना जाएं ये मीटिंग छोड़ के तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। एक्चुअली क्या है, ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग इज नथिंग एल्स, इट इज अ ब्रिज बिटवीन एकेडमिक एंड इंडस्ट्री। आप एकेडमिक में क्या सीख रहे हो, अभी आपके टीचर्स आपको क्या सिखा रहे हैं, और उसका यूज आप इंडस्ट्री में जाके किस तरीके से करोगे, यही एक ट्रेनिंग है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक ट्रेनिंग ले रहे हैं हमें इंडस्ट्रियल सेफ्टी में। अगर आप इंडस्ट्रियल सेफ्टी की ट्रेनिंग लेने का मतलब, पहली बात प्लीज स्टूडेंट्स ये ना समझिएगा कि हम आपको ये कह रहे हैं कि आप जाके किसी कंपनी में काम करो, जॉब करो एज अ वर्कर, एज अ इंचार्ज, एज अ सुपरवाइजर। होप सो आप इतना अच्छा ग्रो करो कि आप मैनेजमेंट लेवल में हो, फिर आपको पता चलेगा कि अपने एम्प्लॉयज को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आप इस तरीके से मत इस सेफ्टी की ट्रेनिंग को समझो कि मैं तो किसी इंडस्ट्री में जॉब करने जाऊंगा नहीं, तो मैं जो है या जाऊंगी नहीं, इसलिए मैं जो ये ट्रेनिंग में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं इसमें अगर आपको रेहान सर ने बोला भी होगा या आपके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बोला गया होगा कि आप लोग ज्वाइन कीजिए, अच्छा कोर्स है, तो सबसे फर्स्ट एटीट्यूड क्या होता है हमारा कि अरे नहीं हमारे मतलब का नहीं है, हम नहीं करेंगे। या हो सकता है कुछ सीएस वाले, आईटी वाले बच्चे या कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके माइंड में ये चल रहा होगा नहीं हमारे मतलब का नहीं है, अरे जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में होते हैं ना उनको ही सेफ्टी आनी चाहिए। नथिंग लाइक दैट। सेफ्टी इज अ चेंज ऑफ। इधर से आके बोल। नहीं नहीं, रेहान सर आवाज आ रही है? हाँ मैम की वॉइस चली गई, आपकी आ रही है। प्रीति यहाँ से आगे। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ मैडम क्लियर है। सर सब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई मेरे ठीक है पीसी ठीक में। है मैम, बोल दीजिए। तो स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सॉरी है उसके लिए जो बीच में ब्रेक हुआ। तो सबसे मेन चीज ये कि हमें जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी सीखना है, जानना है, उसका सबसे मेजर पॉइंट ये है कि हमें पता होना चाहिए, हमारी सोच को हमें चेंज करना है, अपने एटीट्यूड को हमको चेंज करना है, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल एटीट्यूड को चेंज करना है, सबसे मेन चीज। अब सबसे मेन चीज कि आपने भाई मान लीजिए सेफ्टी इज अ फुल टाइम जॉब। आप कभी ये ना सोचें कि आप आज ड्यूटी नहीं गए हैं तो सेफ्टी में आपका काम नहीं है। आप घर में हैं, घर में सबके छोटे भाई, छोटे बहन या दादा दादी सभी लोग हैं। अब किसी को नहीं मालूम है कि मान लीजिए कोई, आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, कभी कभी क्या होता है जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स हैं उनमें पानी की नमी की वजह से कुछ करंट फ्लो हो जाता है, करंट लगने का डर रहता है। नहीं उन्होंने मालूम था और उन्होंने गीले मतलब शावर लेके आए और उन्होंने गीले हाथों से स्विच ऑफ किया, पता चला एकदम से करंट लग गया। तो अब ऐसा नहीं वहां आप कहोगे कि नहीं अरे क्यों नहीं करा, क्यों नहीं करा। इट्स मतलब आपको हर समय अटेंटिव रहना है। मतलब अगर आपका माइंड सो भी रहा है तो भी आपको ध्यान रखना है कि सेफ्टी से हमें, जैसे आप सोते हैं तो आप ध्यान रखते हैं, सारे स्विच ऑफ करते हैं, अपनी जो चार्जिंग लगी होती है लैपटॉप की, मोबाइल की, उसको ऑफ करते हैं। जो आपका सुबह जब आप उठते हैं तो ध्यान रखते हैं कि हमको एसी का जो कंप्रेसर स्विच ऑफ करना है। मतलब छोटी छोटी चीजें हमेशा आपको ध्यान रहती हैं। आजकल सबसे ज्यादा जो एक पॉइंट मैंने देखा, हर किसी के यहाँ पे भी इस समय सैनिटाइजर यूज हो रहा है, हैंड वॉश यूज हो रहा है। अब सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर मैं ये सोचूं कि सेफ्टी की जरूरत मेरे को सिर्फ इंडस्ट्री में थी तो शायद ये गलत था। सबसे मेन चीज कि ये तो खत्म हो गई उज्जवल। सर 1 मिनट, ये है ना जो भी डाउनलोड करी। सर क्या स्क्रीन शेयरिंग अभी आ रही है आपकी तरफ? हाँ मैडम विजिबल है, आ रही है। ओके ओके।
ये पेपर रखा मैं तेरे को हैंड राइटिंग में दे रही हूँ। स्टूडेंट्स, दूसरी बात ये कि ये कोर्स आप क्यों ज्वाइन करें। ये कोर्स ज्वाइन करने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि आप अपने उस एटीट्यूड को चेंज कीजिए कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो सके। जब आप किसी प्रॉब्लम को फेस करना स्टार्ट करते हैं, सपोज दैट कि अभी जैसे उज्जवल जी ने काफी कुछ बताया, प्रेशर वॉल एंड काफी सारी मतलब टेक्निकल टर्म्स आपको बता रहे थे, तो आप लोग वो सब पढ़ते पढ़ते कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, तो मैं वो सारी बातें यहाँ फर्दर नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे जो आपकी मेन चीज है कि भाई नीड क्यों है, आपको एक वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी आपके पास एक टेक्निकल नॉलेजेस का सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है। अभी आपके पास जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको आपको टेक्निकली अपग्रेड करना है। मींस अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, अब सपोज दैट आप किसी इंडस्ट्री के मैनेजर हैं और अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उस प्रॉब्लम से ओवरकम कैसे होना है। तो अगर आप ऑलरेडी ट्रेनिंग करे हुए हैं, सीखे हुए हैं, आपके पास वो स्किल्स हैं, आप लोगों से पूछ सकते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आपने रूट कॉज पे, जैसे अभी उज्जवल जी ने बताया कि रूट कॉज तक पहुंचिए, तो आप उस रूट कॉज तक कैसे पहुंचेंगे। अब अभी एक और एग्जांपल सर ने बताया था, कुछ होते हैं अनसेफ, अनडिजायर्ड, अनफोर्सीन चीजें। अब हमने ये हम इंडस्ट्री में जब हम एक मैनेजर होंगे ना, आप इंडस्ट्री के जब ओनर बनेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे पता नहीं था ऐसा फॉल्ट हो जाएगा, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, या मैंने देखा नहीं था। सपोज दैट आपका घर में जो फर्श है, वो मैं सारी चीजों को इंडस्ट्री से अटैच नहीं करूंगी। इंडस्ट्री से अटैच करके उज्जवल सर ने समझा दिया है। मैं आपको अपनी ये सेफ्टी की ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस आपकी नॉर्मल लाइफ में भी बताऊंगी, ताकि आप लोग ये समझ के इस कोर्स को जो एनपीसी ऑफर कर रही है, सबसे मेन चीज, ये जो कोर्स है ये बनाया इसीलिए गया है कि आप लोग थोड़ा सा सीखें। जब आप लोग अभी जो थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं, उससे टेक्निकल नॉलेज में कैसे आएंगे, उन चीजों को कैसे यूज करेंगे। मतलब अभी ये तो आपको मालूम है कि हाँ हमको करंट लगा था, अभी जो मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे रही थी। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि भाई वो करंट क्यों लगा। जब अभी तो एक छोटा सा स्विच हमने बंद किया था तो हमें करंट लगा। जब आप बड़े बड़े पावर प्लांट्स और बड़ी बड़ी यूनिट्स में हम काम कर रहे होते हैं, तो वहां तो हाई पावर वोल्टेज एंड हाई सब सिस्टम्स बहुत हाई होता है। वहां का अगर किसी को शॉक लगा, करंट लगा, तो क्या होना चाहिए। हमने पीपीई नहीं यूज की थी, या हमने सोचा नहीं था करंट लग जाएगा, या हमें नहीं पता कि हम जिस जगह वो पावर का सॉकेट था, उस जगह ऊपर से कहीं बारिश की वजह से, रेलिंग की वजह से कुछ पानी टपक रहा था। आपने उस चीज को ध्यान, आप कहेंगे मैंने देखा नहीं था कि यहाँ पे पानी टपक रहा है। इन सारी चीजों का एक्सक्यूज आपके पास नहीं रह जाएगा जब यू आर ए ओनर ऑफ और यू आर सुपरवाइजर ऑफ योर कंपनी, एनी यूनिट। तो सेम देखिए, एक एग्जांपल है, अभी हमारे अमिताभ सर ने बताया था नियर मिसेस होती हैं। तो नियर मिसेस इसीलिए होती है क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये क्या, एक तो ये वर्कर जो ये यहाँ खड़ा है, इसने अनसेफ एक्ट किया है, इसको यहाँ खड़ा ही नहीं होना चाहिए था। इतना हैवी लोडेड ये कुछ वजन था और ये ट्रॉली पे रखा हुआ है, या जो भी ये जो सामान उठाने वाले होते हैं, हाइड्रा वगैरह, ये सामान उठा रहा है। तो इस मैडम पर्सन को पीपीटी क्या शेयर नहीं है ठीक से, आप जो बोल रही वो स्लाइड नहीं दिख रही है। वो स्लाइड नहीं दिख रही है। हाँ, अभी जो आपने जो बोला था, अभी आपकी जो स्लाइड दिख रही है वो वर्क सेफ्टी योर फैमिली इज वेटिंग फॉर यू एट होम, ये वाली स्लाइड दिख रही है। ये नियर मिस वाली नहीं दिख रही है। नहीं मैडम, आप चाहे फिर से इसको शेयर हटा के आप फिर से पीपीटी ऑन करके फिर से शेयर कर दीजिए। शेयर सर, ऑप्शंस पे क्लिक करके आप हटा दीजिए। हमने हटा दिया है, अब आप फिर से शेयर कर लीजिए। पहले आप ऑन कर लीजिएगा उसको, पहले आप पीपीटी बैक में जो है स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर आप शेयर कर लीजिए। अभी सर आ रहा है। हाँ शेयर हो रहा है, अब आ गया। नीड ऑफ ट्रेनिंग दिख रहा है। हाँ, नीड ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, अभी ये रन कर रही है पीपीटी आपके हाँ पास। हाँ हाँ, अब रन कर रही है। नियर नियर मिस, मिसेस वाली हाँ पीपीटी है। हाँ अब दिख रही है। अब आप ओके। ओके।
अब ये जो फोटो है मैं जो आप लोगों के सामने ये शेयर करना चाह रही हूँ, इसका शेयर करने का मेन मोटिव ये है कि इस एक्ट को देख के मैं आप लोगों से कहूंगी कि यहाँ पे देखिए दो प्रॉब्लम्स है। पहली बात, हो सकता है ये जो रोप टूटी, इसकी जो ये रोप टूटी, ये रोप ऐसी टूटनी नहीं चाहिए थी। भाई आपने पहले उस रोप की टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेक नहीं किया। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ जरूर हम पढ़ते हैं, लेकिन हम इस टाइप की चीजें अपने एकेडमिया में नहीं पढ़ते हैं। हमने ये जरूर देखा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इस रस्सी क्या थी नहीं थी, ये सारी चीजें हमने थ्योरी में पढ़ी। अब ये नहीं पढ़ा कि हम उसको कहाँ यूज कर रहे हैं। क्या पता इस रस्सी की टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी कम है कि वो इस वेट को कैरी नहीं कर पाई और वो टूट गई। चलिए ठीक है, हो जाता है, इट हैपन्स। बट ये जो पर्सन खड़े हुए हैं, वर्कमैन जो खड़े हुए हैं, इन वर्कमैन की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या रही कि इन्होंने ये यहाँ पे खड़े हुए क्यों हैं, इनको यहाँ नहीं खड़े होना चाहिए था, राइट। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, हमको यही चीजें जो है ना अपने एटीट्यूड में लानी है। वी हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड। अब आप कहेंगे कि ये कोर्स हम क्यों ज्वाइन करें, आप काफी सारा टेक्निकल पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा भाई आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी इन द लाइन ऑफ टेक्निकल नॉलेज। तो जब आप किसी टेक्निकल नॉलेज में हैं तो आप एकेडमिक्स के साथ साथ जब उसकी रियल लाइफ की सिचुएशंस में कैसे हम उन चीजों को हैंडल करेंगे, जैसे अभी एक एग्जांपल बता रहे थे उज्जवल जी कि आप अपने घर में काम करवा रहे हैं, तो वो जो सीढ़ियों से बनाते हैं, रैक्स बनाते हैं चढ़ने के लिए, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे काम करने के लिए, उसकी नॉट कैसी बांधी है आप देखिएगा। कभी अगर कहीं काम हो रहा हो घर के आसपास, उसकी जो नॉट बांधने की प्रोसीजर होता है वो हर किसी का बहुत ही मतलब अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी वो नॉट ही कमजोर होती है, वो जो रस्सी की टेंसाइल स्ट्रेंथ ही कमजोर होती है। तो ये जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, ये मतलब आपको आएंगी, कैसे आएंगी, इसी तरीके से आएंगी जब आप भाई ट्रेनिंग करें, अपना माइंड सेट करें कि हाँ हमें कुछ नया सीखना है। और वैसे भी नॉलेज तो वो चीज है जो आप कहीं से भी ले लें, आपको सीखनी चाहिए। और ये जो कोर्स बनाया है, डेवलप किया गया है, ये मतलब छोटी सी चीज में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं। सर मैं स्लाइड्स को आगे नहीं बढ़ा पा रही हूँ। मैम आगे नहीं बढ़ रही है स्लाइड। अच्छा अब बढ़ रही है? अभी भी नहीं बढ़ी है। अब बढ़ गई है, अब बढ़ गई है। व्हाट इज ट्रेनिंग आ गया ना? हाँ अब आ गया। हाँ, ट्रेनिंग ये की जो कि मैंने सबसे पहले बताया कि ट्रेनिंग का मतलब है कि हम उस ब्रिज, वो ब्रिज है, एक गैप है, हमें उस गैप को दूर करना है आपको ट्रेंड करके। आप सीखिए, आइए इस कोर्स के संग जुड़िए। देखिए इंडस्ट्री के साथ साथ इतने सारे हमने बेस्ट से बेस्ट कोशिश करी है कि जो इंडस्ट्री के पीपल्स हैं, जो इस टाइम खुद इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पे जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में आपके संग रीडिंग मटेरियल होगा। जैसा अभी उज्जवल जी ने बताया कि फायर एंड सेफ्टी का क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये थ्योरी हो गई। इस थ्योरी को हमें यूज, अब आप सोचेंगे ये हमारे यूज का पता नहीं है, नहीं है, क्या क्या बता दिया था। और अचानक से मैंने देखा उसी टाइम पे लोगों का हटना शुरू हो गया था जहां पे ज्यादा पढ़ाई की स्लाइड्स आनी स्टार्ट हुई। तो यही तो एक मतलब जो अभी आपका वाला एज है उसमें यही एक प्रॉब्लम है। आप थोड़ा सा धैर्य रख के उसी चीज को सुनते तो आपको पता चलता। कुछ चीजें, कुछ आग ऐसी होती है जहां पानी नहीं डालना होता है, कुछ आग ऐसी होती है जहां रेत नहीं डालनी होती है। लेकिन शायद हम लोग का माइंडसेट होता है जहां पे ना पानी ना रेत, कुछ भी नहीं डालना होता है। अब जैसे आपने सिलेंडर फटने का एग्जांपल सुना होगा, तो कभी आपने सुना कि वहां पे जो है वो पानी से सिलेंडर की आग लगने के बाद उस घर को जरूर पानी से बुझाया मतलब करा जाता है। जो उस घर की वुडन फर्नीचर जला, दरवाजे जले, उस घर की जो और चीजें थी वो जली, उनको जरूर पानी से बुझाया जाता है। लेकिन जब वो सिलेंडर में आग लगी, वो जो कास्ट आयरन का मटेरियल है जिसके अंदर एलपीजी स्टोर करी हुई है, उसको बुझाने का एक ही तरीका है कि या तो सैंड पड़ेगी उसके ऊपर, या वो जो बोरा होता है आप लोग सभी जानते ही होंगे, जिसके अंदर एयर बिल्कुल ना जा पाए, वो बोरा पड़ता है। तो वो आपके सिलेंडर के उस कास्ट आयरन के मटेरियल के ब्लास्ट को रोक सकता है। अगर आप डायरेक्ट, आपका कहीं सिलेंडर फटा और सिलेंडर के ऊपर अगर आप फायर ब्रिगेड वाला पानी या ये पानी डाल देंगे तो दैट इज नॉट गुड थिंग।
दूसरी चीज ये सभी लोग यहाँ पे सबके घर में सिलेंडर आता है, सबके घर में खाना बनता है। क्या कभी किसी ने सोचा कि वो जो सिलेंडर है वो औरों के घर में फटा था, तो हमें अपने घर में क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? सर क्या आपको इस बारे में मालूम है कि आप सिलेंडर लेते समय किन सेफ्टी इश्यूज को देखना चाहिए? हाँ मैडम। रिहान सर, यस मैम। आप किन किन सेफ्टी प्रिकॉशंस को देखते हैं जब एक सिलेंडर डिलीवरी पर्सन आपके यहाँ आता है? मैडम हम लोग तो यही देखते हैं कि उसमें कोई लीकेज ना हो रहा, ऐसा जो हम लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं। और बाकी घर पे जो है उसके जो जहाँ पर रख रहे हैं वहाँ पे किचन में जो एरिया है वहाँ पर कोई ऐसा आपने कभी ये सोचा कि ये सिलेंडर कब का बना हुआ है, कहीं इस कास्ट आयरन की डेट ऑफ एक्सपायरी तो नहीं आ गई? जी कभी मैं आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया? ये अब आप बात देखिएगा आज ही घर जाके, सिलेंडर में जो ऊपर वाला रिंग होता है जिसको हम लोग होल्ड करते हैं, उसके नीचे 3 जो एंगल्स लगे होते हैं ना डिजाइन जी के हिसाब से, उन एंगल्स में अंदर की साइड से उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उस कास्ट आयरन के मटेरियल की एक्सपायरी डेट। इसका मतलब है कि ये कास्ट आयरन इस डेट में आके कोरोडेड होना स्टार्ट हो जाएगा। जो देखिए आयरन बनने की जो प्रक्रिया है ना, वो कुछ ऐसी है कि मल्टीपल लेयर्स उसके संग जुड़ी हुई हैं, तो उसकी लेयर्स छूटने लगेंगी ड्यू टू, चाहे वो करोड़ हो, चाहे वो भाई किचन में पानी का काम होता है, हो सकता है आपका सिलेंडर रखने की जगह ऐसी हो कि उसमें रेगुलर 2-4 बूंद डेली पानी पड़ता हो। अब वो सिलेंडर एक ही जगह 30 दिन रखा रहेगा तो कुछ जंक वो बाहर से खाएगा, कुछ वो अंदर से करोड़ हो रहा होगा। और आजकल आपने देखा भी है, थोड़ा बहुत गड़बड़ी भी होती है कि कभी कभी हम लोग बात करते हैं ना कि इस बार ना गैस कम लगा है, कुछ पानी वानी टाइप का है, ब्लू ब्लू फ्लेम, रेड रेड फ्लेम आने लगती है। वो जो एंगल्स मैं बता रही हूँ ना, जो 3 एंगल्स होते हैं इस तरीके से सिलेंडर में ऊपर 3, इन 3 एंगल्स में अंदर की साइड से लिखा होता है ABCD। ABCD is A is the first trimester of a year, B is the second trimester of a year, C is the third and fourth is the last trimester of the year। और जो ईयर पड़ा होता है that is the date of expiry। आप देखिएगा जितने स्टूडेंट्स अभी मुझे सुन रहे हैं, सब अपने अपने सिलेंडर को चेक कीजिएगा। मैं समझती हूँ 70% घरों में इस टाइम एक्सपायर्ड सिलेंडर रखा होगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं, मैंने भी जब सेफ्टी की ट्रेनिंग ली ना, तो सबसे पहले मुझे वहीं से पता चला। भले ही मैं आज इंडस्ट्री की जॉब नहीं करती हूँ, लेकिन ये नॉलेज करके मैं अपना एक मेरे अंदर एक प्रोफेशनल चेंज, एक प्रोफेशनल एटीट्यूड का चेंज आया कि मैं 4 लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। आप भी अपनी कम्युनिटी के साथ ये बात शेयर कर सकते हैं। जो बात मैं अभी आपको बता रही हूँ, उसमें लिखा होगा A23, या कोई देखिएगा आज भी किसी ना किसी के घर में पक्का निकलेगा कि अभी जो बच्चे अपने घर में है, घर का सिलेंडर जाके चेक करिए, D21 या D20, दैट मीन्स लास्ट ट्राइमेस्टर, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऑफ ईयर ऑफ 2020। तो ये एक ऐसी नॉलेज है जो कि मैं ऐसे ही ट्रेनिंग से सीखी हूँ, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो मैं अगर अपने कोर्स के बारे में ऐसे बहुत देर बताना स्टार्ट करूंगी तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग भी कहेंगे कि मैडम हमें क्या क्या बता रही हैं। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोग आइए, सीखिए, इस कोर्स में जुड़िए। आपको जो सिखाया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सब जानते हैं, लेकिन शायद नहीं पता होगा अभी अभी जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 70% को नहीं पता होगा कि हम ऊंची बिल्डिंग तो बनाएंगे। सबने सपना देखा है हम 5 मंजिला घर बनाएंगे, लेकिन उस घर की सुरक्षा ये नेचुरल बिजली से कैसे करेंगे? अपने घर में जो सॉकेट डलवाएंगे कौन से होने चाहिए, वायर कैसे होने चाहिए, कितना वो वायर का रेजिस्टेंस होना चाहिए। हम अब आई एम नॉट अ इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, मैं केमिकल की बैकग्राउंड से हूँ, तो बहुत डीप में मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आप यहाँ पे आके जुड़िए। हमारे बिल्कुल इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स जो रहे हैं, करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोसेस का, वो लोग आके आपको ट्रेन करेंगे, आपको सिखाएंगे, आपको थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ लाइव क्लासेस, लाइव नॉलेज भी देंगे। आप लोग के पास समय रहेगा कि जिस दिन आपकी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की लाइव क्लास होगी, उससे पहले यू हैव ऑल दी रीडिंग मटेरियल, आप एक बार पढ़ लीजिए, जो क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं। और बाकी स्लाइड्स में ऐसा कुछ नहीं है, बस अगर आप मैनेजर बने या ओनर बने या एक सुपरवाइजर बने या एक वर्कर बने, जो भी आप बने अपनी लाइफ में, एक एटीट्यूड की बहुत ज्यादा जरूरत है।
वो ये सेफ्टी ट्रेनिंग से आपको देखने में आएगी। डायरेक्ट इंडायरेक्ट कॉस्ट होती है, अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं और आपके यहाँ 1 महीने में 4 एक्सीडेंट हो गए, तो आपको उनके परिवार को पालने के लिए 2 लाख रुपए का और 4 लाख रुपए का जो वो देते हैं ना, हर्जाना देते हैं, वो सारे भी इनडायरेक्ट कॉस्ट में आके जुड़ जाते हैं। इन सारी चीजों की टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है जिसको मैं अभी यहाँ नहीं यूज कर रही हूँ, बिल्कुल आपकी भाषा में आपको समझा रही हूँ कि क्यों हमारे लिए ये कोर्स इम्पोर्टेंट है। भाई, आप अपने एम्प्लॉयज का मोटिवेशन कैसे करेंगे? अगर आपकी यूनिट पे आपने कोई फैक्ट्री खड़ी करी है, सपोज दैट आप कुछ नहीं, एक ये सैनिटाइजर बनाने, जो आजकल सैनिटाइजर चल रहे हैं, सैनिटाइजर की आपने एक प्लांट लगाया, सैनिटाइजर का प्लांट लगाने के लिए आप या तो किसी गन्ना मिल से कांटेक्ट करेंगे कि हमको जो क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, जैसे शीरा हो गया, चल रहा है, डिस्टिलेशन कॉलम में प्रोसेस हो रहा है, अचानक से कोई फॉल्ट हो जाता है और जो बंदा डिस्टिलेशन कॉलम के ऊपर संभाल हाँ मैडम, कंप्लीट हो गया? वॉइस नहीं आ रही आपकी। उज्जवल सर, वॉइस नहीं आ रही है। 1 मिनट, आप म्यूट हो गए हैं। मैडम आपकी वॉइस नहीं आ रही थी अभी, म्यूट। अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है। मेरे पास मैसेज आया था दैट होस्ट इज म्यूटेड एवरीवन। अच्छा, नहीं, वो हो सकता है आपने म्यूट हो गया हो आपका, तो अभी हमने अच्छा, म्यूट कर दिया है। तो कंप्लीट हो गया मैडम, अभी बचा है? मेरी तरफ से कंप्लीट है। अच्छा बस अच्छा, मैं ठीक है। स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगी, देखिए एक चीज और सर, स्क्रीन शेयर चल रहा है आपकी तरफ? अभी आप शेयर करिए, अभी चल नहीं रहा है। वो बीच में आपका जो आपने बोला था उसके बाद हट गया था शायद, कुछ कनेक्शन की वजह से। चलिए कोई नहीं, मैं ऐसे ही बताती हूँ। देखिए, जी। इंडस्ट्री में जो हमारा मेन मोटिव है, एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना, एज अ वर्कर आप लोगों को सेव करना, और एज अ मैनेजर जो आपका काम है अपनी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। भाई, हम तो यही कहेंगे कि भाई हम वैसे भी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल से हैं। किसी भी यूनिट में आपकी या जॉब नरेश, क्या लगे हुआ? या आप एक नई यूनिट स्टार्ट करें, तो उसकी प्रोडक्टिविटी हमेशा हाई रहनी चाहिए। तो सेफ्टी इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एनी इंडस्ट्रीज प्रोडक्टिविटी, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी कॉस्ट ऐसी इन्वॉल्व हो जाती हैं अगर कोई छोटा सा भी एक्सीडेंट किसी की इंडस्ट्री में हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से मेरी एक सजेशन है, और गुड सजेशन है अगर आप लोग इसे माने, कि जो भी मेथड जो सर ने बताया है कि किस तरीके से आपको स्पोर्ट्स के लिए जुड़ना है, वो सर आपको बताएंगे। और जो है, आप लोग आइए, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच सर। कुछ क्वेश्चंस एंड रेज हैंड आ रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है मैडम, मैं अभी बच्चों को चैट का ऑप्शन देता हूँ। बेटा, आप लोग आपको जो भी क्वेरी है, आप 5 मिनट के अंदर सर और मैडम है, आप पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में जाके आप जो भी आपकी क्वेरी है आप वहां पर रखिए। स्टूडेंट, अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग चैट ऑप्शन में जाके वहां पर टेक्स्ट करिए। अगर किसी को भी कुछ पूछना है, कुछ डाउट है आपको।
and thank you so much Vision Institute of Technology कानपुर एंड अलीगढ़ कैंपस की आपने हमें ये मौका दिया कि हम स्टूडेंट्स के सामने इस कोर्स का ओरिएंटेशन करें और साथ ही उनसे रूबरू हों कि भाई सीखें जाने वो लोग भी कि इंडस्ट्री में कैसे वर्क हो रहा है और क्या चीजें इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू मैडम। सो मच। थैंक यू मैडम उज्जवल सर एंड डायरेक्टर सर। स्टूडेंट अब अगर आगे आपको इन फ्यूचर कभी क्वेरी हो तो आप अपनी बात पूछ सकते हैं, और जो है अभी आप लोग इसके बारे में थोड़ा स्टडी करिए। थोड़ा अभी आगे की चीजें लोग सोचते हैं इंडस्ट्री में जाने की बात की चीजें, तो अभी इससे लोग थोड़ा हटते हैं कि ये तो अभी हमें एकेडमिक में इसका क्या यूज है, लेकिन ये आपके रियल डेली लाइफ में भी सेफ्टी की बहुत जरूरत है। और इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे, चाहे आप सिविल इंजीनियर हो या मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो या आप किसी भी ब्रांच के हो, जब आप इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे तो वहां पर ये सब आप देखेंगे सेफ्टी जो भी मेजरमेंट है। तो सभी लोग इसको थोड़ा स्टडी करें, और आगे इसमें आप लोग अगर खाली टाइम है तो इसमें आप लोग नेशनल काउंसिल में जो भी चल रहे हैं प्रोग्राम उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं सबका जो है जितने भी यहाँ पैनल थे, मैं मैम को और सर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला हमारे विजन ग्रुप के बच्चों के लिए, और इस बारे में अवेयर कराया सिक्योर जो भी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे सेफ्टी से रिलेटेड। तो थैंक यू मैम। बस इतना कहना चाहूंगी। जी मैम। हाँ सर, बस इतना कहना चाहूंगी, जो भी स्टूडेंट